Good morning, dear students. Today we will learn how operating system do process management. When a program wants to execute, it will directly go to operating system. And what operating system will do? Operating system will load that particular program into a memory with the help of process scheduler. And when a program is loaded into a memory, it becomes process. And when the program become process, what process will do? Process will execute itself whenever CPU is assigned to it. Okay, now after loading into a memory, a program becomes process, and after becoming a process, what process will do? Process will wait for its turn, and whenever CPU is assigned to that particular process, then that particular process will execute itself. Okay, and you can see here, this is the conceptual memory map of process. Because what operating system is doing, operating system is loading a program into the memory. So this particular memory space is assigned to a process, which is divided into the four block. First block is program code. In that region, all the compiled code is stored in that block. Second block belongs to global variable. All the global variables are stored in that block. Third block is stack. All the local variables are stored in stack, and all the return value of any function is also stored in stack. And the last is heap. Heap memory area is a region of free memory from which chunks of memory are allocated via process. Okay, now it is a free memory space that is assigned to a particular process, and whenever the process needs any free space, it will take from the heap. Now, how process will execute? This is the state of the process. There are five states of process. First state is start. Okay, when a program is ready to execute, it will load it into a memory. Okay, the first state is start. What start state will do? It will load a particular program into memory. That is the initial state when a process is first started or created. We know that how processes will create. Process will create when process will load into a memory. Sorry, when a program will load into a memory, it will automatically becomes process. Okay, so what start is doing? Start is taking a program and it will load that program into a memory, and it will automatically becomes a process. So what's ultimately what is a use of start state? It will create a process. Okay, it will create a process. How process will be created? When a program is loaded into the memory. So state start state will do a loading work, loading of any particular program. Now ready, when a program is loaded into the in a memory, it become process and it is ready to execute. Okay, now the program, our process is ready to execute, and it is waiting for its turn, because we have only one CPU and we have lots of work to do. So CPU is executing the process one by one. And let us suppose we want to execute a particular process, and CPU is already executing one process. So here the our process will wait for its turn, and in ready state is indicating that our process is ready to execute, but he is not getting the CPU. Okay, whenever CPU is free, then it will immediately take that process and it will be immediately execute that process. Okay, so when a program is loaded in memory, it becomes process and is ready to execute, and every process has to wait for the CPU. That is, CPU might be executing other processes jobs, to it has to wait for its turn on CPU. This is the ready state of the process. But it means in ready state our process is ready, but he is not he is not you can say that CPU is not free.
for that particular process. Now, waiting state. Now, third is running state, and whenever CPU assigned to that process, it will directly shift it into running state. Okay, once CPU gets CPU time, whenever the CPU is allocated to that particular process, then it will directly start for its execution. And when CPU is allocated to particular process, it will directly move to the running state. And let us suppose CPU wants to run any particular process. Let us suppose um, you can say process want to print something. Let us suppose CPU wants to, sorry, process want to print something, and our printer is already printing something. Then here process cannot be completed because to for the process completion, यहाँ पर क्या requirement है कि we have to print that we have to print any document, and but printer is not free because printer is already printing some documents. So here our process have to wait. And अगर CPU execute कर रहा है कोई भी process को और उसे प्रिंटर नहीं मिल रहा, अगर CPU के पास वो प्रोसेस है तो CPU को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक उसको प्रिंटर अलाउ नहीं हो जाएगा तब तक वो प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि बिकॉज वो प्रोसेस CPU के पास है और CPU उसको कंप्लीट नहीं कर सकता बिकॉज प्रिंटर फ्री नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, CPU क्या होगा, अननेसेसरी क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका आइडल बैठा हुआ है बिकॉज वहां पर सीपीयू कोई भी काम नहीं कर रहा, बिकॉज सीपीयू का हैंड का कोई काम नहीं है, बिकॉज अब जो काम है वो प्रिंटर का है, बट प्रिंटर फ्री नहीं है। बस सीपीयू उसको रिलीज नहीं कर सकता बिकॉज ऑलरेडी वो क्या है, कंप्लीट नहीं हुई है अभी। तो सीपीयू क्या करता है कि कभी भी अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है या किसी भी प्रोसेस को अगर मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है और वो इनपुट आउटपुट या मेमोरी उस टाइम पे फ्री नहीं है, तो उसको वेट करना पड़ता है। और जैसे किसी भी प्रोसेस को किसी भी पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट या मेमोरी के लिए वेट करना पड़े तो डायरेक्टली क्या करेगा हमारा जो सीपीयू, उसको रनिंग स्टेट से उठा के कहाँ डाल देगा, वेटिंग स्टेट में डाल देगा और सीपीयू क्या हो जाएगा, खुद फ्री हो जाएगा, ठीक है। सीपीयू ने क्या किया, क्योंकि इस हमारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने थे और प्रिंटर हमारा फ्री नहीं था, तो सीपीयू ने देखा कि भैया अभी प्रिंटर फ्री नहीं है, तो उसने क्या किया, अपनी जो भी प्रोसेस है उसको पिक किया और उसको डायरेक्टली कहाँ डाल दिया, वेटिंग में डाल दिया। और वेटिंग में डाल दिया तो अब जो रनिंग स्टेट है वो फ्री हो गई। अब सीपीयू क्या कर सकता है, रेडी स्टेट से एक और प्रोसेस को उठा सकता है। ओके, अब तो डायरेक्टली क्या होगा कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अ प्रोसेस हैज टू वेट फॉर सम रिसोर्सेज सच एज वेटिंग फॉर सम यूजर इनपुट और वेट फॉर अ फाइल becomes available when the CPU takes up the next process is in the ready queue waiting for CPU and the current process state becomes waiting, ठीक है। बिकॉज देखो सीपीयू के पास मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है, अगर सीपीयू एक ही प्रोसेस में रुका रहेगा तो क्या होगा, आपकी बाकी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होंगे। तो सीपीयू ने क्या किया, तुरंत जहां देखा इसको रिक्वायरमेंट हुई वेटिंग की तो तुरंत वेटिंग में डाल दिया और वेटिंग में डालने का नेक्स्ट प्रोसेस को ले लिया। अब लेट अस सपोज जैसे इसने वेटिंग में डाला तुरंत क्या हो रहा है, उसको प्रिंटर अवेलेबल हो गया, बट अभी सीपीयू के पास क्या है, ऑलरेडी एक प्रोसेस है, तो अब ये जो प्रोसेस है ये वेट करेगी और दोबारा किस में चली जाएगी, या रेडी क्यू में चली जाएगी। जैसे ही इसकी वेटिंग टाइम खत्म हो जाएगा, जैसे इसको प्रिंटर मिल जाएगा तो दोबारा वेटिंग से उठ के कहाँ जाएगी, रेडी में आ जाएगी। और जब ये जो सॉरी जो यहाँ पर हमने जो प्रोसेस दी हुई है हमारे सीपीयू को, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वो जो प्रोसेस जिसको प्रिंटर चाहिए था वो दोबारा से रेडी क्यू से कहाँ जाएगी, रनिंग में आ जाएगी। अब बिकॉज हमारा प्रिंटर फ्री है तो वो प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो कहाँ आ जाएगी, टर्मिनेट पे आ जाएगी, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो किस में आ जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो वंस अ प्रोसेस all the instructions are successfully executed and has completed its execution or it is terminated by the operating system. In either case it has changed its state to terminated state. ओके, जब भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी या सीपीयू उसको टर्मिनेट कर देगा तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट स्टेट पे चली जाएगी, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ प्रोसेस। जो पहला जो स्टार्ट स्टेट है उसमें क्या होगा कि कोई भी जो हमारा जो प्रोग्राम है वो लोड होगा मेमोरी पे और वो क्या बनेगा, प्रोसेस बनेगा। तो यहाँ पर प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी, जैसे प्रोसेस क्रिएट होती है तो कहाँ पर आ जाएगी, रेडी में आ जाएगी। रेडी में क्या हो रहा है कि प्रोसेस तो हमारी रेडी है बट हमारा जो सीपीयू है वो कोई और काम कर रहा है,
जब हमारा सीपीयू वो काम कंप्लीट कर देगा तो रेडी से क्या करेगा, यहाँ से रेडी से प्रोसेस को उठा लेगा। ठीक है, अब जैसे ही क्या हुआ, सीपीयू फ्री हुआ, सीपीयू ने रेडी से हमारी प्रोसेस को उठाया तो सीधे हमारी जो प्रोसेस है वो कहाँ पहुंच गई, रनिंग में पहुंच गई। अब वो रनिंग हो रही है, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे से ऐसा लगा कि हमारी जो प्रोसेस है उसको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, बट जो प्रिंटर है वो ऑलरेडी कुछ प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सीपीयू डायरेक्टली इसको रनिंग स्टेट से उठा के कहाँ डाल देगा, वेटिंग पे डाल देगा, बिकॉज प्रिंटर के लिए इसको वेट करना है। जब प्रिंटर फ्री हो जाएगा तो वो वेट स्टेट से उसको ले लेगा। ठीक है, जैसे ही हमारा सीपीयू ने प्रोसेस को रनिंग से वेटिंग में डाला तो रेडी में जो नेक्स्ट हमारी प्रोसेस होगी उसको सीपीयू ले लेगा। अब वेटिंग स्टेट में जब भी उसके प्रिंटर मिलेगा, प्रिंटर मिल गया तो दोबारा जो स्टेट जो हमारी जो प्रोसेस है वो रेडी में चली गई। अब रेडी में क्यों गई, बिकॉज सीपीयू हो सकता है कि कोई और प्रोसेस क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर वो कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो क्या होगा, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो रेडी से फिर वो वाली जो प्रोसेस है हमारी दोबारा रनिंग में आएगी, और रनिंग में होने के बाद बिकॉज अब प्रिंटर हमारा फ्री है तो अब क्या होगा, वो प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होकर उसको क्या कर देंगे, हम टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी, मेरी स्टेट ऑफ प्रोसेस होगी। अब हम बात करते हैं किसी भी प्रोसेस का एक क्या होता है, पीसीबी होता है, इसको बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, हर जो प्रोसेस होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसके लिए एक पीसीबी बनाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। उसमें क्या होती है, आपकी हर प्रोसेस की अपनी एक आईडी होती है, यूनिक आईडी होती है हर प्रोसेस की। और सेकंड जो ब्लॉक होता है उसमें स्टेट होती है, इसमें वो कौन सी स्टेट में है, रेडी में है, वेटिंग में है या रनिंग में है, ये आपका एग्जीक्यूट होता है। फिर एक ब्लॉक होता है आपका प्रोसेस प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब उस प्रोसेस को क्या क्या अथॉरिटीज है, क्या उसको रीड की अथॉरिटी है, या उसको राइट की अथॉरिटी है, या उसको मेमोरी को एक्सेस करने की अथॉरिटी है, या उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज करने की अथॉरिटी है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, प्रोसेस प्रिविलेज में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी प्रोसेस को क्या क्या हमने अथॉरिटी दी है। ठीक है, फिर आता है पॉइंटर। अब हो सकता है कि हमारी जो प्रोसेस है वो किसी सब प्रोसेस को जनरेट कर रही हो। ठीक है, मतलब एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को क्या कर रही हो, जनरेट कर रही हो। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास सब पॉइंटर हम बनाते हैं, जो क्या करते हैं, नेक्स्ट जो भी हमारी प्रोसेस सब प्रोसेस को जनरेट करेगी उसको पॉइंट करता है। ठीक है, अब प्रोसेस कैन create subprocess. In such cases, a pointer store the details about the parent process of current process or subprocess. अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक प्रोसेस ने सब प्रोसेस को क्या किया, जनरेट किया, और सब अब जो प्रोसेस मेरी है, ठीक है, वो आपकी वेटिंग में चली जाएगी, और जो सब प्रोसेस है वो आपकी एग्जीक्यूट होने लग जाएगी। ठीक है, लेकिन जो पॉइंटर होगा वो पॉइंटर क्या करेगा, क्योंकि जैसे ही मेरी सब प्रोसेस कंप्लीट होगी तो मुझे दोबारा जो मेरी पहले वाली प्रोसेस है तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर एक हायरार्की बन रही है। ठीक है, कि एक हायरार्की में क्या है, एक क्या है पेरेंट प्रोसेस, और उसकी क्या है चाइल्ड प्रोसेस है। अब जैसे पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई और पेरेंट प्रोसेस ने क्या किया, अपने चाइल्ड प्रोसेस को क्या किया, जनरेट किया। अब जैसे चाइल्ड प्रोसेस को जनरेट करेगा तो वहां पर क्या होगा कि जो हमारी पेरेंट प्रोसेस है वो तो वेटिंग में चली गई, और चाइल्ड प्रोसेस क्या होने लगे, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट होगी, अब चाइल्ड प्रोसेस के कंप्लीट होने की इमीडिएट बाद क्या होगा, वहां पर हमारी पेरेंट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज प्रोसेस तो तभी कंप्लीट होंगी जब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या करेगा जो पॉइंटर है कि जो भी हमारी जो सब प्रोसेस हमारी जब कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी जो सब प्रोसेस को पता है कि कंप्लीट होने के बाद मुझे दोबारा से क्या करना है, अपनी पेरेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो वहां पर क्या होगा कि वो क्या करेगा, अपनी पेरेंट प्रोसेस का एड्रेस को पॉइंट करके रखेगा, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी तो पॉइंटर आपकी पेरेंट प्रोसेस पर जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो जाके कंप्लीट क्या होगी, प्रोसेस मेरी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर सिंपल सी बात है कि जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होना है उसका जो एड्रेस है वो कहां पर स्टोर होता है, प्रोग्राम काउंटर पे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का कि काउंटर जो प्रोग्राम काउंटर है वो क्या करता है, ये स्टोर करता है एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू एग्जीक्यूट करने वाला है। ठीक है, अब सीपीयू रजिस्टर क्या होता है, सीपीयू रजिस्टर क्या होता है, बहुत ही स्मॉल मेमोरी चंक्स होते हैं सीपीयू के अंदर। जब भी सीपीयू को मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो वहां पर सीपीयू क्या करता है, उन रजिस्टर्स को यूज करता है एज अ मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी से थोड़ा अलग है, बिकॉज जो ये रजिस्टर होते हैं ये होते मेमोरी स्टोरेज के लिए ही है, मेमोरी को स्टोर करने के लिए होती है, बट इन रजिस्टर्स को कौन यूज करता है, सीपीयू। सो व्हेनेवर सीपीयू वांट्स टू
वांट्स अ मेमोरी, तो वो क्या करता है, सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर को यूज करता है फॉर इट्स पर्पस, ठीक है, बिकॉज सीपीयू के पास अपनी एक पर्सनल मेमोरी होती है, इसको हम रजिस्टर बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं अदर शेड्यूलिंग और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक्सेट्रा, उस एक्सेट्रा में हमारी कोई भी अदर शेड्यूलिंग और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकती है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मीन्स क्या होती है कि जो सीपीयू प्रोसेस को शेड्यूल कर रहा है, जो हमारा शेड्यूलर है, अब उसके लिए भी वेरियस आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती हैं, जैसे आपकी कोई फीफो होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती है, फिर एक लीफो होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कोई प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है, कोई जॉब शेड्यूलिंग होती है। तो कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के कौन यूज कर रही है हमारी प्रोसेस, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। और बाकी ये सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो हम इसके बारे में अभी डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक आज का है वो है हाउ सीपीयू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन ऑफ रेडी प्रोसेस, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या है, एक डायग्राम है, कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहला काम हमें पता है कि प्रोसेस क्या होगी, मेमोरी पे लोड होगी, और जैसे मेमोरी पे लोड होगी और उसको सीपीयू असाइन करेगा, और सीपीयू के हमें पता है कि 3 पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक एएलयू होता है, और एक आपका एक मेमोरी यूनिट होता है। और सबसे पहला जो हमारा बेसिकली क्या होता है, सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होती है वो होती है फैच डिकोड एग्जीक्यूट। तो हमारा जो जो हमारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं पहले फैच होते हैं, फिर उनको डिकोड करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो फैच का मीनिंग क्या है, जब भी कंट्रोल जो यूनिट है जब पहले इंस्ट्रक्शन को लेती है तो उसको फैच बोलते हैं। हमारे हमें पता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो मेमोरी पे लोड होगा। अब मेन मेमोरी से जब हमारा इंस्ट्रक्शन लिया जाएगा कंट्रोल यूनिट, जब मेन मेमोरी से कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को लेगी तो उसको क्या बोला जाएगा, फैच बोला जाएगा। मींस मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को क्या किया गया है, फैच किया गया है। अब फैच करने के बाद सीपीयू ये डिटरमाइन करेगा कि ये डिकोड करेगा कि जो इंस्ट्रक्शन है उसको क्या डिमांड है, वो क्या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है या कोई लॉजिकल ऑपरेशन है या सिंपली रीड और राइट ऑपरेशन है, ठीक है। वो किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है, ये काम क्या है, डिकोडिंग का काम है। डिकोडिंग मीन्स अब सीपीयू के पास जब इंस्ट्रक्शन पहुंच गया तो सीपीयू डिकोड कर रहा है कि वो इंस्ट्रक्शन किस टाइप का है, मैथमेटिकल है, लॉजिकल है, रीड और राइट है, ठीक है, किस तरह का एग्जीक्यूशन है, तो इसको बोला जाता है डिकोडिंग। अगर वो एग्जीक्यूशन आपका मैथमेटिकल है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, एएलयू को यूज करते हैं। तो सीपीयू उसको डायरेक्टली किसके पास ट्रांसफर कर देगा, एएलयू के पास करेगा, और एएलयू उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है या कोई लॉजिकल ऑपरेशन भी है, कोई एएलयू होती है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अगर अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन है तो सीपीयू उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा एएलयू पे, और एएलयू उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर तो थर्ड आ गया, प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट आ गया। बट अगर वो सिंपली रीड और राइट है तो सिंपली इसको रीड और राइट कर देगा, उसको एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और और जो भी आपका रिजल्ट आएगा, चाहे वो रीड और राइट के बाद आए, चाहे वो आपका एग्जीक्यूशन के बाद आए, तो एएलयू क्या करेगा, एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, और वो जो रिजल्ट है वो मेन मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। तो 4 आपके इंस्ट्रक्शन साइकिल के पार्ट हो गए, फैच हो गया, डिकोड हो गया, एग्जीक्यूट हो गया एंड स्टोर हो गया। फैच में क्या होगा, मेन मेमोरी से फैच किया इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट ने। अब कंट्रोल यूनिट ने जब इंस्ट्रक्शन को फैच किया तो वो ये डिटरमाइन करेगा ये कौन सा आपका इंस्ट्रक्शन है, मैथमेटिकल है, लॉजिकल है, उसको डिकोड करना बोलेगा। और अगर वो मैथमेटिकल और लॉजिकल है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा विद द हेल्प ऑफ एएलयू। अगर वो रीड और राइट है, सिंपल इसको रीड और राइट करेगा। और एएलयू अगर वो है, और तो एएलयू जब उसको एग्जीक्यूट करेगा तो एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, और वो रिजल्ट मेमोरी में स्टोर करेगा। तो यहाँ पर जो फोर्थ आपका पॉइंट आ गया आपका स्टोर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक कंप्लीटली इंस्ट्रक्शन साइकिल है। इंस्ट्रक्शन साइकिल के 4 पार्ट है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर, ठीक है। अब स्टोर की रिक्वायरमेंट आपकी हमेशा नहीं होगी। अगर रीड और राइट ऑपरेशन है, अगर सिंपली आपको रीड करना है तो आपको वहां पर मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो स्टोर की रिक्वायरमेंट आपकी हमेशा नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पर तो स्टोर की रिक्वायरमेंट सिर्फ तभी होगी जब हमारा एएलयू कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा और उसको मेमोरी में रिजल्ट को स्टोर करना होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट एंड कीप लर्निंग।